Bismillahirrahmanirrahim. Now students, we are starting our chapter number 7, and chapter number 7 is fundamentals of geometry. First of all, we are discussing some definition regarding to our chapter. Our first definition is transversal. A line that cut across usually two or more parallel lines is called transversal. Here PQ is the transversal. Look at these two lines. These two lines are the parallel. AB and CD are the parallel lines to each other. Now PQ is the transversal which cut two parallel lines. ठीक है, अब parallel lines क्या होती हैं? Discussing in our next definition. Parallel lines, if two lines lying on the same plane never meet, touch or intersect at any point, then these are called parallel lines. Parallel lines always same distance apart. Means those lines which never meet at any point. ये दो lines अगर आप देख रहे हैं जो ये आपके सामने एक एज एग्जाम्पल दी गई हैं, इनको आप जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाएंगे, दे नेवर मीट एट एनी पॉइंट. ये किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी. वाई? बिकॉज दीज आर द टू पैरेलल लाइन्स. Clear, students? Now we are discussing special angles when transversal intersect two parallel lines. जब transversal दो parallel lines को intersect करता है तो किस किस तरह के कौन कौन से angles बनते हैं? First, vertically opposite angle, corresponding angles, alternate interior angles and interior angles. अब further हम इनको बारी बारी study करते हैं. पहले हम study करेंगे vertically opposite angles को. Vertically opposite angles are formed when two straight lines intersect two angles at directly each other through the vertex. For example, अगर आप इस example को देखें तो यहाँ angle AOC, angle AOC, this is A, this is O and this is C. ये वाला angle और angle DOB, DOB, ये angle और ये angle vertically opposite है. Clear? ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट है. इसी तरह एंगल AOD और एंगल BCOB या BOC जो है ये और ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है. क्लियर? नाउ द सेकेंड वन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. द एंगल्स आर एट सेम पोजिशन, बोथ आर ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड एट द सेम साइड ऑफ द टू पैरेलल लाइन्स. मीन्स दीज आर द टू पैरेलल लाइन्स. अब यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 5 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8 एंड एंगल 3 एंड एंगल 7, दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ alternate interior angles, the pair of angle B, angle F and angle C, angle G, both are the angles are on opposite sides of the transversal and between the parallel lines. These angles are called alternating angles. Means angle B and angle F, this and this, angle C, this and angle G, this. यानी alternate और इंटीरियर का मतलब अंदर वाले. ठीक है, तो ये alternate उल्ट भी हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा और C का ये हो जाएगा. क्लियर? Now interior angle. Consider the pair of angles marked angle 1, angle 3 and angle 2, angle 4, which both the angles in a pair are the same sides of the transversal between the two parallel lines. These angles are interior angle. Mean angle 1 is angle 3, angle 2, angle 4. यानी ये straight line है तो इस transversal के ये इस साइड पे है तो ये भी इसी साइड पे होगा, ये इंटीरियर है. और अगर अल्टरनेट इंटीरियर की बात की जाए तो ये B है, इसका अल्टरनेट है F, और ये C है और C का अल्टरनेट है G. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लुक एट दिस पॉइंट. व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, तो क्या होता है जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन साइज, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन साइज, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, आर एड अप टू 180. Supplementary means a 180 degree. Clear students? Now we are starting our exercise 7.1 and our first question is find the measure of angle PQR. Angle PQR आपने बताना है, जबकि R आपके पास एंगल गिवन है और वो कितना है? 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर एंगल है. As I told you before कि अगर आप इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे तो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जो हम ऊपर स्टडी कर चुके हैं. इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, तो इंटीरियर एंगल है आपका एक एंगल Q और एक एंगल R. एंगल Q प्लस एंगल R इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल Q आपने फाइंड करना है और एंगल R जो है वो आपके पास है 90 डिग्री और विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. Angle Q is equal to 180 degree minus 90 degree
angle Q is equal to 90 degree. So the required angle PQR is equal to 90 degree. Clear, students? Now look at the second part. Find the value of x. x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है जबकि आपके पास ये गिवन है. अगर आप ये देखें तो ये आपका वर्टिकल एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. इसको आप लेट कर लें y, ठीक है. सो इसके अकॉर्डिंग एंगल y जो है वो आपके पास 150 डिग्री आ जाएगा बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. नाउ अब आप अगर इन दोनों एंगल्स को देखते हैं तो ये इनका रिलेशन आपके इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है मींस एंगल y प्लस x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, एंगल y है 115 प्लस x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. दे बिकम x प्लस 120 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. 120 को उस साइड पे मूव करवाएंगे minus 120 degree and x is equal to 60 degree. Clear, students? Now look at the question number 3. If Mayer angle 3 is equal to 68 degree, Mayer angle 8 is equal to this, what is the value of x? So you show your steps. Look at the figure. This is the figure here. 3 दिया हुआ है और आपके पास 8 दिया हुआ है. Clear? Now वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अगर एंगल 3 आपके पास 68 है तो एंगल 2 भी आपके पास 68 डिग्री होगा. अगर एंगल 8 आपके पास 2x प्लस 4 है तो एंगल 5 भी आपके पास 2x प्लस 4 होगा. क्लियर, स्टूडेंट्स? नाउ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो इट बिकम्स 68 प्लस 2x प्लस 4. ये एंगल 2 और एंगल 5 के जो आपके आंसर्स हैं इनको लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री. 2x प्लस 72 degree is equal to 180 degree. 2x is equal to 180 degree minus 72 degree. 2x is equal to 108 degree. X is equal to 108 divided by 2. X is equal to 54 degree, which is our required answer. Clear, students? Now look at question number 4. Measure angle 1 is 105. Find Meyer angle 4, angle 5, angle 8. Identify which property is used. Look at the answer now. अगर आप ये देखें कि एंगल 1 आपके पास 105 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी 105 होगा. अगर ये आपके पास 105 है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी 105 होगा. अगर अब ये 105 हो गया तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी आपके पास 105 ही होगा. नाउ एंगल 4 105 हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. इसी तरह ये अब 4K और 5 जो है ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, वो भी 105 हो गया. और 5 और 8 जो है वो फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए जो दोबारा 105 हो गया. क्लियर, स्टूडेंट्स? नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. सॉल्व फॉर एक्स आल्सो फाइंड द एंगल. आपके पास जो वैल्यू गिवन है इसकी पहले आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपने ये एक्स वाला एंगल भी फाइंड करना है. तो अगर ये देखें तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सो 75 डिग्री प्लस 11x माइनस 2 विच इज़ इक्वल. क्लियर? ये दोनों आपके पास इक्वल हो जाएंगे. अब आप इसको लिख सकते हैं 75 डिग्री प्लस 2 इज़ इक्वल टू 11x. इट बिकम्स 77 इज़ इक्वल टू 11x. 77 over 11 is equal to x and it is equal to 7 degree. x आ गया. Now अब आपने इसका एंगल फाइंड करना है. Now एंगल is equal to 11x minus 2. x की जगह पे जो वैल्यू आई है उसे फीड करेंगे. 77 minus 2 which is equal to 75 degree. क्लियर, स्टूडेंट्स? अब आपका देखें कि ये भी एंगल भी 75 है, ये भी 75 है, तो आपकी ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो रही है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. क्लियर, स्टूडेंट्स? नाउ अब यहाँ पे देखिएगा ये एक एंगल है और एक एंगल ये है. अगर आप इनको देखें तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हैं दोनों, यानी पैरेलल लाइंस के अंदर वाले साइड्स पे हैं, लेकिन ये दोनों अल्टरनेट है, यानी एक इस साइड पे है दूसरा लाइन के उस साइड पे है. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं. इन दोनों को इक्वल करने के बाद x इज़ इक्वल टू 132 माइनस 139 डिग्री विच इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू -7 एंगल
अब आप एंगल फाइंड करेंगे x + 139 -7 + 139 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 132 डिग्री। तो आपका ये भी प्रूव हो गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, बिकॉज ये भी 132 है और ये भी आपके पास 132 आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज अगेन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगेन आपके पास। नाउ लुक एट द आंसर, आप इसके इक्वल करेंगे, 75 को उधर जाके माइनस हो जाएगा, इट बिकम्स 35, देन 35 को आप x की जगह पुट करेंगे, इट बिकम्स 110। क्लियर? नाउ लुक एट दिस पार्ट, दिस इज अगेन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। क्लियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपको डेफिनेशंस अच्छे से प्रिपेयर करनी हैं। जब आपकी डेफिनेशंस प्रिपेयर हो जाएंगी देन आपको समझ आएगी कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट है, इंटीरियर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर द डेफिनेशंस। क्लियर स्टूडेंट्स? होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट एक्सरसाइज 7.1।